Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो आप सभी? का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी के चैनल पे, जहाँ पे आज मैं स्टीवन सर ऑब्वियसली आप में से कुछ बच्चों को, क्योंकि सारे लोग सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं ना, तो जो 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स का सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैनल के साथ में, एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम को मैं सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, सारा कुछ टाइटल के अंदर दिया गया है। लाइक लास्ट टाइम कि सर मेरा फॉर्मेट क्या होगा जी, मेरे पीछे है फॉर्मेट, यहाँ पे है ओल्ड रेशो, यहाँ पे है न्यू रेशो। व्हेन आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम, ओल्ड ये क्यों है, न्यू ये क्यों है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, ऊपर है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन या तो उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि कुछ लेक्चर्स तक मैं समझा रहा हूँ, मैं वो दोनों लिख दूंगा, आपको एक ही लिखने की ज़रूरत है। उसके अंदर एक कोड वर्ड है ALLA, वो कोड वर्ड कैसे, कितना बड़ा यूज़ का है ड्यूरिंग द लेक्चर, वापस से रिपीट करूँगा। कैश अकाउंट आज है, बैंक अकाउंट नहीं है। गुडविल अकाउंट है, वो भी रफ वर्क है। और मेरे पीछे पार्टनर्स कैपिटल और मेरे ऊपर न्यू बैलेंस शीट। द पार्टनर्स नेम इन विच द ओल्ड पार्टनर्स समीर एंड निशा, न्यू partner has to be Poonam. Generally she is the third partner. Okay, this is the format. Pause the video lecture, draw the format left and right page, फिर आ जाना। ये वाला अकाउंट करीबन 5 लाइन का, ऊपर वाला रिवैल्यूएशन करीबन 6 लाइन का, बीच में कैश और गुडविल फिट करना, और ऊपर बचा बैलेंस शीट। सो दैट्स अप्रॉक्सीमेट, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट एनीथिंग। फर्स्ट लाइन, Sameer and Nisha were partners sharing profit and losses 3/4 1/4, मतलब 3:1. Showed the following balance sheet on 31st March 2018. क्या है बैलेंस शीट में? कैपिटल है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जनरल रिजर्व है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1, ओल्ड पार्टनर्स, नॉट न्यू। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक फिक्सचर, डेटर जो मैंने लास्ट टाइम आपको स्टाइल दिखाया वैसे, बिल रिसीवेबल, ये सब न्यू बैलेंस शीट, एंड कैश इन हैंड कैश अकाउंट के अंदर। ओके, ये है पढ़ने के बाद में स्टेप 1। 2 एडजस्टमेंट्स करो। फर्स्ट लाइन, दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर। अच्छा, तो नए पार्टनर का शेयर दिया, तो उसके इमीडिएटली क्या क्या रेडी होना चाहिए? देखो, न्यू रेशो, ओल्ड, सैक्रिफाइस रेशो रेडी होना चाहिए। ओल्ड रेशो उन लोग ने बोला 3/4 1/4, और अभी पूनम आई और उसको मिला 1/5। सो देर इज अ
देयर इज अ स्टाइल टू फाइंड द न्यू रेशियो। पहले आपको ढूंढना है रिमाइंडर ऑफ 1। क्या है वो? अरे 1 रुपया में से 1/5 आपने दे दिया नए पार्टनर को कि रखो 1/5, तो बाकी का बचा विच अगर 5 में से 1 पार्ट आप किसी को दोगे तो बचेगा कितना? 4/5। इसको कहते हैं कंबाइन रेशियो, क्योंकि 4/5 में ओल्ड पार्टनर्स को अपने अपने हिस्सेदारी करनी है, क्योंकि जो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया न्यू पार्टनर को वो लेकर चली जाएगी। नाउ व्हेन यू गेट कंबाइंड रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो? NOC, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड रेशियो। तीनों का न्यू रेशियो में नाम आना चाहिए। ओके, समीर का ओल्ड रेशियो 3/4, कंबाइंड 4/5, 12/20, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। निशा का 1/4, 4/5, मल्टीप्लीकेशन, नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4/20। पूनम का सिर्फ न्यू रेशियो है 1/5, ओल्ड नहीं है, बट बाकी के पार्टनर्स लोगों का डिनोमिनेटर 20 बन गया, तो इनका भी डिनोमिनेटर 20 बनना चाहिए, बिकॉज द पार्टनर शुड ऑलवेज हैव द डिनोमिनेटर सेम। कैसे करने का? देख, 5 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय कितना विल गिव यू 20? 4। ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 4/20। दिस इज हाउ यू मेक 1/5 इंटू अ डिनोमिनेटर ऑफ 20। अब न्यू रेशियो कितना? 12:4:4, मतलब 3:1:1। तो अगर कभी जरूरत पड़े हम लोग ये रेशियो यूज करेंगे। ये सैक्रिफाइस का क्या? हाँ, सन, ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं, समीर निशा। ओल्ड माइनस न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये आया 3, निशा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आया 1। सो इट इज 3:1, 3:1 सैक्रिफाइस रेशियो, विच इज सेम लाइक द ओल्ड रेशियो। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में आप नज़र करोगे, देखोगे, आपको ये पता चलेगा। सो लेटर ऑन पॉज मार के ये पूरा कॉपी करना और मत करना, खुद से सॉल्व करना, बट सेम आंसर्स आने चाहिए। एक बार न्यू पार्टनर का रेशियो दिया, जल्दी जल्दी हमने न्यू एंड ओल्ड ढूंढ लिया। अभी पॉइंट नंबर 1, पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज अ कैपिटल। तो नया पार्टनर ने कैपिटल दिया। ओके, तो इसका एक जर्नल एंट्री आएगा। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। गुडविल को, सॉरी, पूनम को गुडविल भी लाना है, तो वो क्या बोल रही है? अच्छा, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट बताओ और उसका 4 times, 4 years परचेज है ना ये वाला, उसका मतलब है 4 times। पहली बात, ये एवरेज कैसा ढूंढते हैं? एवरेज प्रॉफिट, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके यूज से आपको गुडविल ढूंढना है। ओके, हम लोग आते हैं, अभी मैं ये आगे पढ़ता हूँ। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट गुडविल। 3, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज, फिक्सचर का नया वैल्यू, बिल रिसीवेबल का नया वैल्यू, स्टॉक का नया वैल्यू, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%। तो जो प्रोविजन है मतलब रिजर्व RDD वो 20% का है। ओके, लास्ट 4th पॉइंट, बिल पेएबल, अच्छा बिल पेएबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड। अच्छा, तो तुम ऐसे भूल गया, तो वी विल राइट इट, हम लाइबिलिटी में लिख लेंगे। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वी वांट फॉर पॉइंट नंबर 2 कितना भाई? 60, 45, 40, 75, 30, देन 45,000। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है, बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन रेडी है। स्टेप 1, खाली करो बैलेंस शीट। ओके, कैपिटल, I'll write reserve, I'll distribute, old ratio I will distribute. So just behind me I'll clear this, the capital and the distributed what you call general reserve 3:1, 36,000, 12,000। इसके बाद क्रेडिटर, वो उधर आएगा, उधर क्रेडिटर
इसके बाद नहीं पता, मैंने तो बाहर नहीं किया। स्टॉक, फिक्सचर, डेटर अपनी स्टाइल में, बिल रिसीवेबल। अच्छा लेट मी राइट स्टॉक, फिक्सचर, डेटर अपनी स्टाइल में RDD ऐसे ब्रैकेट में, एंड बिल रिसीवेबल। इसके बाद में था कैश अकाउंट, जो वो कैश में जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। ओके हाँ, तो स्टेप 1 हो गया, बैलेंस शीट खाली। स्टेप 2 एडजस्टमेंट्स पढ़ो। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज अ कैपिटल। पूनम बॉट। अच्छा, जब पूनम कैपिटल लाती है तो वो दिखता कैसे है, ऐसे कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट साइड टू पूनम कैपिटल, और ठीक मेरे पीछे बाय कैश 1,20,000। ओके, आप जब पॉइंट नंबर 2 पढ़ो तो क्या समझना है, पूनम वुड पे नया पार्टनर कैश फॉर गुडविल, तो गुडविल लाना है ना उनको एक्स्ट्रा, वो कैश में भरेगी, जो अच्छी बात है क्योंकि उसका जो एंट्री है मैंने कुछ टाइम पहले बता दिया था, कैश डेबिट टू गुडविल, वो तो पता है, बट गुडविल कितना है अभी उसका उन्होंने थोड़ा लंबा स्टोरी दिया है। द वर्डिंग सा विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो ये पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years कहाँ पे दिए हैं, पॉइंट नंबर 4 में 60, 45, वेल नॉट पॉइंट नंबर 4, उसके बाद का पॉइंट 60, 45, 75, 30 एंड ऑन द नेक्स्ट पेज 45,000 5th year। आपको क्या करना है, इनके हेल्प से पहले आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। ओके, एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, देख उसके अंदर आपको टोटल प्रॉफिट लिखना पड़ता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है सब ऐड किया, लॉस अगर होता तो माइनस कर, टोटल प्रॉफिट 2,55,000। एवरेज प्रॉफिट का आंसर फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो दैट इज 2,55,000 अपॉन 5। वी आर फाइंडिंग आउट गुडविल विद द हेल्प ऑफ पास्ट 5 years प्रॉफिट, क्योंकि ये पहले आपको बताया है, रिपीट करता हूं, गुडविल का मेजरमेंट हाइट वजन नहीं होता। तो हाउ डू यू कैलकुलेट गुडविल, जो दिखता ही नहीं है उसका नाम है गुड रेपुटेशन। ओके, उसके लिए आपको कि जो कंपनी का गुडविल है ऑटोमेटिकली वो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अ ओल्ड फिल्म स्टार, क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहा है या वो काम कर रही है, उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है एडवर्टाइजिंग का। क्यों? क्योंकि उनका नाम, इज्जत, शोहरत ज़्यादा है कंपेयर्ड टू अ न्यू कमर। उसी तरह यहाँ पे Once you do average profit formula, the answer of average profit is 51,000. This is not goodwill. This is only average profit. Goodwill उन्होंने कहा है is 4 years purchase. What is 4 years purchase? That is multiply by. So I repeat, अगर आपको goodwill calculate करना है, जो average profit है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 years से। 2 years परचेज मल्टीप्लाई बाय 2, 3 years परचेज मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आप उतने टाइम के लिए उसका गुडविल खरीद रहे हो। जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 2,04,000। अच्छा, ये गुडविल है, येस और नो। ये गुडविल पूरी दुकान का है, आपको सिर्फ जो नया पार्टनर है ना पूनम, सिर्फ उनका हिस्सा ढूंढना है। ओके, तो उनका रेशो कितना है यार, 1/5 है, ऐसे उन्होंने बोला था 1/5। तो दैट कम्स टू आफ्टर द नेसेसरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन 4,800। दे कुड हैव गिवन मी 4,800, दे डिडंट। इसके बाद का कहानी सिंपल है, बट टू फाइंड गुडविल यू हैव टू यूज अ मेथड विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तो इसमें नहीं है सुपर प्रॉफिट, उसमें इंफॉर्मेशन अलग होती है। ये एवरेज प्रॉफिट एंड दिस इज हाउ इट इज सॉल्व। आप पॉज करके ये बाद में कॉपी कर लेंगे। 4,800 का एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट में मैंने डेबिट किया जी, और गुडविल में क्रेडिट हो गया। राइट नाउ पूरी कहानी के बाद
आपको क्या याद रखना है? अरे ये जो गुडविल है ना 4800, गुडविल के अकाउंट में, ये तो पुराने पार्टनर्स के पास जाना चाहिए। यस, क्योंकि उन्होंने अपने थाली से थोड़ा खाना दिया है नए पार्टनर को, समीर एंड निशा, समीर एंड निशा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा समीर एंड निशा, उनका नाम आया 3/4 1/4 सैक्रिफाइस रेशियो में, 3/4 1/4। अच्छा, हाउ मच इज इट? 3600 10 200, उधर आया 2 और उसके बाद मेरे ठीक पीछे आया बाय 3600 एंड 10,200। ये था पॉइंट नंबर 2 कि गुडविल पहले तो आया, बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स में। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर, नया वैल्यू। फिक्सचर्स का नया वैल्यू 45,000। कितना है फिक्सचर्स? देख लो मेरे पीछे 60,000। वेल मेरे पीछे नहीं, मैं भूल जाता हूँ ना स्क्रीन के किस तरफ जा चुका हूँ। हाँ 45,000। ये पहले तो 60 था, अभी 45 कैसे? अरे डेप्रीसिएशन डिक्रीज हो गया रहेगा 15,000। ओके, माइनस एसेट माइनस हुआ, ये आपको देखना है, एसेट माइनस। हाँ तो ये कोड वर्ड है, देखो माइनस ए, माइनस ए तो मैं डेबिट में लिखेगा, हाँ तो लिखो ना, बराबर है 15,000। ये था फिक्सचर की कहानी। इसके बाद क्या? बिल रिसीवेबल का नया वैल्यू 1,20,000। किधर गया क्वेश्चन? सोल्यूशन। ये बिल रिसीवेबल तो 90,000 है, हाँ तो बाहर डालना 1,20,000। ये है न्यू वैल्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, बीच में री वैल्यू। कितना इंक्रीज हो गया? अरे 30,000, इंक्रीज लिख लो। सेकेंड इफेक्ट, ये एसेट प्लस हुआ, हाँ बराबर ऊपर देख मेरे, एसेट प्लस तो उधर क्रेडिट में आएगा बाय बिल रिसीवेबल 30,000। द मोर यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स द मोर ये और इजी होगा। स्टॉक 60,000, किधर है स्टॉक? इधर है स्टॉक, पहले 90 था अभी 60, कम हो गया, डिक्रीज 30,000। तो एसेट माइनस हो गया ना, हाँ एसेट माइनस ना डेबिट में है। ओके, टू स्टॉक 30,000। तो हमने बिल रिसीवेबल, फिक्सचर, स्टॉक सबका ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। अभी नेक्स्ट लाइन, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%। तो ये क्या है? प्रोविजन मतलब आरडीडी, वो 20% का होना चाहिए। अच्छा, किधर है डेटर्स? देख ऊपर है डेटर्स, कितना है डेटर्स देखना 1,50,000। तो अभी क्या बोला? उसका आरडीडी 20%, हाँ तो 15,000 का डबल, कितना? 30,000। तो ये आरडीडी यहाँ पे जो बाहर आएगा वो है 30,000, 20%। अच्छा, उसके बाद क्या? तो आपको सोचना है यार पहले तो आरडीडी 15,000 था, हाँ तो अभी वो प्लस हो गया 15,000, प्लस 15, तब जाके वो 30,000 आएगा। सेकेंड इफेक्ट किधर है? ये आरडीडी लाइबिलिटी है, कभी एसेट मत बोलना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस हुआ, प्लस, हाँ तो वो डेबिट में है ना, बराबर टू आरडीडी 15,000। द बदलाव, पहले 15 बाद में 30, तो बीच में 15,000 ऐड हुआ। अभी डेटर का आउटर कॉलम भी लिख लो 1,20,000, अभी नहीं तो बाद में, बट कभी ना कभी लिख लेना, बिकॉज मार्क्स इज ओनली फॉर दैट। नेक्स्ट, सो ड्यूरिंग द चैप्टर ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में देयर विल बी एसेट एंड लाइबिलिटी में उतार चढ़ाव, और आपको वो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है। बिल पेएबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड, भूल गया, वो लिखा ही नहीं बिल पेएबल, किधर ने लिखा? अरे लाइबिलिटी में लिखते हैं, चलो लिख देते बिल पेएबल। जीरो क्यों लिखा? अरे पहले नहीं था तो जीरो, अभी 15,000 बन गया, पहले नहीं था तो जीरो, अभी 15,000। तो ऐसा सोच कि जीरो बन गया 15,000, कैसे? प्लस 15,000 इंक्रीज, प्लस, तो वो इसके लिए रीजन मैंने जीरो डाला, अदरवाइज मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में 15,000 लिख सकता था। ओके, सो इंक्रीज ऑफ 15,000। लाइबिलिटी, ऊपर देखो लाइबिलिटी में प्लस हुआ, हाँ तो वो डेबिट में दिखता है ना, प्लस एल टू
बिल पेएबल 15,000। ओके ओके, पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा था उतना हो गया। अभी हमको टैली करना पड़ेगा। पहले आप कोई भी अकाउंट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं कैश अकाउंट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैश का डेबिट है 235,800, so the balance is also 235,800. There it is credit and above me asset में it will come debit. That is the second effect. Above me it will come debit. What about goodwill? It is the same on both the sides, 4,800. What about revaluation or profit and loss adjustment? It seems debit is heavy and credit में फर्क है। हाँ, तो this is loss on revaluation. Debit में आता तो profit। कितने लोगों में बटेगा? 2 लोगों में, ये समीर और ये निशा। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो नॉट सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो 33,750, 11,250 ओल्ड रेशो। वो है बाय, इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, और ऊपर नहीं जाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर। नीचे अगर आप देखो पूनम का टोटल, आप कोई भी पार्टनर के साथ में टोटल स्टार्ट कर सकते हो। तो नीचे पूनम का क्रेडिट और डेबिट में वही डिफरेंस। निशा 1,84,200, डेबिट में माइनस करे तो 1,72,950 बैलेंस आ गया। समीर 2,16,600 माइनस करे 1,82,850। ये तीनों पार्टनर का बचा हुआ पैसा है। किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। तीनों पार्टनर का बचा हुआ पैसा बिजनेस के अंदर। तो अब आप क्या करोगे? अरे बैलेंस लिख लो, उसको पिकअप करके ये बैनर जाएगा, उसको पिकअप करो और ऊपर लाइबिलिटी, बिकॉज दिस इज डेबिट, ये डेबिट है, डेबिट ऊपर आता है क्रेडिट। सो वी राइट ऑल द नेम्स एंड द टोटल 475,800 एंड देन सारे अकाउंट्स बन गए। तो अब आप बैलेंस शीट टैली, ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए, 5,80,800 एंड ऑब्वियसली ये सेम आ गया। सो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम जहाँ पे अच्छी वैरायटी थी। गुडविल को ढूंढने का तरीका ही अलग था, लिखने का तरीका वही था डेबिट क्रेडिट, बट ढूंढने का तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड ऑल्सो समवेयर इन छोटा मोटा प्रॉब्लम ये डेफिनेटली आ सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ यू आर ओल्ड स्टूडेंट तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। अगर आप यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को दबाकर ही जाइए। जब तक हम दोबारा ना मिले इस लेक्चर के बाद में, वंस अगेन फॉर अनदर लेक्चर ऑफ एडमिशन, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।